the revered and respected dignitaries on the dais और सभागार में उपस्थित मातृशक्ति भाइयों बहनों, सारे भारत से 11 राज्यों से लोग आए हैं, ऐसा मुझे बताया है। और सब लोग थोड़ी थोड़ी हिंदी समझ लेते हैं, ऐसा बताया है। ठीक है ना? तो मैं हिंदी इंग्लिश ऐसी बात करूंगा। और दुनिया एक नए भारत को एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि भारत अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेकर खड़ा हो रहा है। वैसे ये भारत न्यू भारत नहीं है। The world knew this Bharat since ages, but this identity of Bharat was being denied during the colonial rule, or even after independence also. लेकिन जो समाज में जागरण हुआ है उसका संदर्भ हुआ आरएसएस ने तो किया ही, परंतु सभी स्पिरिचुअल लीडर्स भारत के, इन सभी के प्रयास से यह अवेकनिंग हुआ है, एक रिजल्ट दिख रहा है। और जो पुराना भारत था वही आज के लोगों के लिए एक नया भारत है। भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी लेकर अब लोग भारत को देख रहे हैं। ऐसा ही भारत वो चाहते थे। दे वांटेड टू सी दिस भारत, दे न्यू दिस भारत। 2014 16th में the results of parliament elections were declared. It was Friday. 18th was Sunday. There is a daily paper published from Britain called The Guardian. Its Sunday edition is called Sunday Guardian. So 18th May 2014, Sunday Guardian carried one editorial. I will just quote first 3 sentences. Remember, it is an editorial of a paper published from Britain. I quote the first 3 sentences. The Guardian says, today 18th May 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India. Narendra Modi's victory in these elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled this subcontinent. India under Congress Party was in many ways a continuation of British Raj by their means. It was a bold statement. But there is one very insightful statement at the top of the editorial. It says it should be obvious that the underlying changes in the Indian society have brought us Mr. Modi and not the other way around. तो भारतीय समाज में जो जागृति आई है उसके कारण मोदी आए हैं। ये जागृति मोदी के कारण नहीं आई है, ऐसा गार्डियन लिख रहा है। इसलिए भारत की असली पहचान को लेकर हमको खड़ा होना है। एंड वी हैव टू लिव दोज वैल्यूज। यह महत्व की बात है। एक हिंदी फिल्म का गीत बहुत पॉपुलर है, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। I add one more sentence to it, और ये भारत रहना चाहिए। So what is it that makes भारत भारत? What is the identity? There are 3 things I would like to speak on. They are the identity of Bharat, uniqueness of Bharat. First is the way of life,
of Bharat is based in spirituality. अध्यात्म आधारित जीवन का दृष्टिकोण है. And it has shaped the personality of Bharat, entire people of Bharat, living in all the states, speaking different languages, but they connect themselves with this way of life that is based in spirituality. And recently during this corona pandemic, entire world has experienced it. The corona pandemic दुनिया भर में था, in many countries, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, US, UK. In all these countries, only state machinery, state employees were serving, they were active to help save people. In Bharat, no doubt, the government machinery was very active. Many of them have led their lives to serve and save people. So they were rightly called Corona warriors. But Bharat is the only country in the world where lakhs of people came out. Ordinary people, women, young children, they came out to help the people. From Karnataka, Andhra, Telangana, Maharashtra, 40 lakh migrant workers migrated towards Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand. 40 lakh on foot. No transportation, no hotels were open, no shops were open. But there were nowhere riots. Everywhere people came out. पानी पिलाया है, खाना खिलाया है, शेल्टर की व्यवस्था की है. और फ्लड, अर्थक्वेक के बाद सेवा करना इज डिफरेंट. लेकिन हाईली इन्फेक्शियस, हाईली फैटल ऐसी बीमारी है, मेरे जान को खतरा है, माय लाइफ इज डेंजर, यह जानते हुए भी लाखों लोग बाहर निकले हैं. ऐसा सारे भारत में हुआ है और केवल भारत में हुआ है. ये भारत के स्पिरिचुअलिटी का मैनिफेस्टेशन है. इसलिए इस भारत की स्पिरिचुअल बेस्ड वे ऑफ लाइफ के कारण जो भारत की पर्सनैलिटी बनी है, उसके 4 सेलिएंट फीचर्स हैं. फर्स्ट इज बिकॉज द वे ऑफ लाइफ इज बेस्ड इन स्पिरिचुअलिटी, इट इज होलिस्टिक, इंटीग्रल, एंड इट्स इज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड. That's why it thinks about Vasudhaiva Kutumbakam, entire earth is one family, not market but family. Close your capital I and open your eyes. मैं छोटा करो और आंखें खोलो, then the circumference of V expands. हम का दायरा बड़ा होता है. You feel a connection. जो हमारे नहीं, उनके साथ connection feel होता है, and you are prompted to do something for them. This doing something, giving to something to the society, उसको धर्म कहा है. इसलिए धर्म आचरण का नाम है. आचार्य प्रथमो धर्म कहा है. सिस्टर निवेदिता जो विवेकानंद की डिसेबल थी, शी वॉज आयरिश, मार्गरेट नोबल, वो कहती है कि समाज में लोग अपने परिश्रम का रेम्यूनरेशन अपने इस पास न रखकर समाज को देते हैं. ऐसे समाज के पास एक्यूमुलेटेड रेम्यूनरेशन के कैपिटल पर समाज प्रॉस्परस बनता है एंड समाज के हर व्यक्ति प्रॉस्परस बनती है. यह धर्म है. धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. धर्म टेक केयर ऑफ एवरीबडी. धर्म करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म सबकी रक्षा करेगा. धर्म रक्षति रक्षितः. आगे वो कहती है सिस्टर निवेदिता, जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं, ऐसे समाज में कुछ लोग तो रिच दिखते हैं, बट द सोसाइटी एट लार्ज रिमेन्स पुअर. तो ये धर्म है. और ये जो राज्याधारित नहीं, स्टेट डिपेंडेंट नहीं, सोसाइटी डिपेंडेंट काम चलते थे, उसका आधार धर्म था. इसलिए लोगों के रहने के लिए, पिलग्रिमेज के लिए जो बिल्डिंग बनती है उसको धर्मशाला कहते हैं. बिल्डिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग घाट, ये सब धर्म कार्य कहा गया है. धर्म यह है
उपासना, रिलीजन प्रॉम्प्ट्स हेल्प्स वन टू डू धर्म, धर्म आचरण का नाम है। और इसके कारण सारा समाज की धारणा होती है। तो धर्म की व्याख्या है धारणा धर्म विद्या हो, धर्मो धार्यते प्रजा। ये मंदिर में जाना, व्रत करना, उपवास करना, अग्निहोत्र करना, संध्या करना, ये सब रिलीजन है, उपासना है। दिस उपासना हेल्प्स यू टू हैव ए कनेक्शन विद द लार्जर पीपल हु आर नॉट योर ओन, and you are prompted to work for them, give some to them. This is dharma. Religion prompts you to perform dharma. Religion itself is not dharma. I know one family, Marwadi family in Ahmedabad. She is a goddess devotee, देवी के भक्त है। अहमदाबाद से एक अंबाजी नाम का एक देवी का क्षेत्र है, 180 किलोमीटर दूर है। Every month after marriage, every month she used to go. Rich family है, घर में कार है, हर महीने कार से अंबाजी जाती है देवी के दर्शन के लिए। वहाँ बच्चे भीख मांगते हैं, बेगिंग करने वाला सबको देती है, कभी किसी को ना नहीं कहा है। ऐसा 25 years तक चला है। Every month for 25 years she used to go there. जो भी बच्चे बेगिंग करते हैं उनको कुछ को देना और देवी का दर्शन करके आना। आफ्टर 25 years, उनकी शादी को 40 years हो गए, शी हैज बिकम ग्रैंडमदर नाउ। बिफोर 15 years, one day when she went there as routine, उसका मैं छोटा हुआ और हम बड़ा हुआ। Then she felt a connection with the kids who were begging. She thought these people should go to school actually. Why are they begging here? I am studying. The thought came to her mind that maybe their parents don't have the monetary support, so I will spend money. पैसा पहले भी था, ये connection feel नहीं हुआ था। She talked with the kids and all the children were ready to go to school. She felt so happy. So she talked with their parents. तो पेरेंट्स ने कहा, बहन जी ये बच्चे स्कूल में जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? ये बेगिंग करके कुछ लाते हैं तब घर में चूल्हा जलता है, हमारी भूख शांत होती है। और हंगर इज सेटिस्फाइड। हमारे लिए हंगर सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। दिस शी डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट दैट वाज द रियलिटी। शी टुक ए डिसीजन। She made a list of the families जिनके बच्चे भीख मांगते थे। 50 families were there. Since last 15 years, इन 50 फैमिली के घर में पर एवरी मंथ एक राशन का किट जा रहा है ताकि घर में चूल्हा जलेगा और खाना मिलेगा। और बच्चों को स्कूल में एडमिट किया है। फीस, यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स। स्कूल दूर है, स्कूल बस खरीदी है, उसका ड्राइवर का सैलरी है। 15 साल से मैं जनवरी 2020 में उनके साथ इनका काम देखने गया था। आई नो दिस फैमिली सिंस लास्ट 25 years। और अभी रिसेंटली मार्च 4 को 4 मार्च को मैं वहाँ गया था, 4 अप्रैल को गया था अभी। अब अंबाजी में कोई बच्चा भीख नहीं मांगता है। नोबडी goes for begging. Everybody goes to school. जो बेगिंग करने वाले बच्चों स्कूल में जा रहे हैं, कितना चेंज हुआ है। मेरे सामने बैठे थे, उसका सूत्र है भिक्षा नहीं शिक्षा। तो 25 years तक उसका रिलीजन, उपासना चल रही थी। धर्म अभी शुरू हुआ है 15 साल से। तो समाज को देना है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब उन्होंने हिंदुत्व का जागरण किया।